कराया जाए और हम लोग सभी लोग समवेत राष्ट्रगान के लिए तैयार होंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। अब हम अपने कृतिका वाचिक को हम यहाँ बुलाना चाहेंगे, यहाँ पर आए कृतिका वाचिक। Good morning to everyone who is present over here on this prosperous occasion of Republic Day. This year India will be celebrating its 74th Republic Day. Republic Day is celebrated to remember the historic moment when our nation became an independent republic country. As we all know that अब आपके सामने अद्वितीय आशीष रंजन समूह झंडा गीत पेश करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दें। आशीष बरसाने वाला प्रेम सुरा सरसाने वाला। सरस्वती बरसाने वाला प्रेम सुरा सरसाने वाला। वीरों को हर्षाने वाला वीरों को हर्षाने वाला। मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान ऐसी जाने पावे चाहे जान वाले ही जावे। शान ऐसी जाने पावे चाहे जान वाले ही जावे। विश्व विजय करके दिखलावे विश्व विजय करके दिखलावे। हो बेमानूर हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। वीरों आओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ। आओ प्यारे वीरों आओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ एक साथ सब मिलकर गाओ। प्यारा भारत देश हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा गीत बहुत ही भावप्रद राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ बच्चों ने प्रस्तुत किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र की जो आत्मा है, भावना है, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देखा था
वह भले ही पूर्ण रूप से वो सपना साकार न हुआ हो। अब हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे समक्ष सुश्री प्रियंका सिंह आंग्ल शिक्षिका यहाँ पर आए। उनका विनम्र निवेदन है वो हमारे समक्ष इस पावन अवसर के प्रति कुछ अपने शब्द रखें। A very warm and pleasant morning to our respected principal in charge, teachers and each one of you present over here. First of all, I would like to wish you all a happy Republic Day. As you all know that we all have gathered here to celebrate the 73rd Republic Day of our nation. We all know that it is a very proud moment for all of us. As we all know that our country India got its freedom from the British rule on 15th of August 1947. But actually we became free when the Constitution of India came into effect. The Indian Constitution was drafted by Dr. B.R. Ambedkar, who is also known as the architect of the Indian Constitution. The Indian Constitution was made on 26th of November 1949 and it was finally executed on 26th of January 1950. This was the day when our country got the world's longest written constitution. This was the day when our country actually became a self-governing or republic country. What is the meaning of republic? Republic means a country where the people, the decision of the people is paramount. A country where people has all the right to choose their representatives to lead the country in a right direction. And all this has happened because of our freedom fighters who fought a lot for the Purna Swaraj. It was their sacrifice that we all are standing together here as a union, as united and celebrating the Republic Day of our country, the 73rd Republic Day of our country. They have sacrificed their lives for us so that their future generation will not have struggled for the freedom. And it was their sacrifice that we are free to move anywhere in our country. And we all are standing together as a united nation. Republic Day marks the establishment of our independence. It gives us the empowerment to the Indian citizens. Though it has been many years of being a republican country, let us not forget the sacrifices done by our great leaders. Let us thank them and remember them by celebrating the Republic Day and keeping them in our prayers and by following the values and principles taught by them. Let us strive to make our nation a peaceful and grateful place to be here. And let us remember the principles and values taught by them in our values and principles. These are the words. At the end, I would like to conclude my speech by saying that तू हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ है दोनों इंसान तू हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ है दोनों इंसान तू मेरी गीता पढ़ ले मैं पढ़ लूँ तेरी कुरान अपने तो दिल में है बस इतना अरमान एक ही थाली में खाए अपना सारा हिंदुस्तान। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका मैडम ने हमारे समक्ष हमारे पवित्र जो दस्तावेज गणतंत्र दिवस का उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। के बाद हम प्राचार्य प्रभारी महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि वो अपने हम लोगों के बीच अपने वक्तव्य को यहाँ पर प्रस्तुत करें। इस पावन जो त्यौहार है, पर्व है राष्ट्रीय, उसके परिप्रेक्ष्य में। और भारतीय पर्व जो आज हम मना रहे हैं गणतंत्र दिवस, उसकी सभी को शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ इस पर्व को मनाने के लिए इकट्ठा हुए। वास्तव में गणतंत्र हम सभी नवोदय में दिखाई देता है कि हम देश के विभिन्न भागों से, विभिन्न जातियों, विभिन्न संप्रदायों से, विभिन्न भाषाओं के होते हुए भी यहाँ एक साथ मिल करके जिस तरह से काम करते हैं, यही गणतंत्र की सार्थक परिभाषा है। गणतंत्र स्थापित होने का जो कारण था, क्योंकि अंग्रेजों के समय में उन्होंने हमारे देश को विभिन्न जातियों, धर्मों के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर, भाषाओं के आधार पर बांट रखा था और इन सब को एक करने की बहुत
आवश्यकता थी, जिसे ध्यान में रखकर हमारे संविधान का निर्माण किया गया, ताकि सभी को समान अधिकार दिए जा सके, सभी को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। इसी गणतंत्र को मानते हुए हमारा देश आज विश्व के अग्रणी देशों में गिना जाने लगा। हमें भी अपने जीवन में इस गणतंत्र के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम सम्मान देंगे तो हमें सम्मान अवश्य मिलेगा। कभी मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हम किसी से श्रेष्ठ हैं या कोई हमसे छोटा है। इस प्रकृति में एक छोटे से छोटा जीव भी अपनी एक अलग महत्व को रखता है। हमें चींटी के महत्व को भी नकारना नहीं चाहिए अगर हम हाथी के महत्व को जानते हैं तो। गणतंत्र का अर्थ यही है, हम सबके साथ और सबके विकास की बात करें। ये किसी राजनीतिक दल की सोच नहीं हो सकती है, भले ही कुछ दलों ने इसको उपयोग किया हो, लेकिन वास्तविक जो हमारे भारतीय संस्कार हैं वो यही सिखाते हैं कि भगवान राम ने निषाद राज की भी मदद ली थी। भले ही वो भगवान के अवतार थे, लेकिन उन्होंने भी सभी साथियों को, उन्होंने जीवों की भी मदद ली, वानर जाति की मदद लेकर के लंका जैसे राज्य पर उन्होंने विजय प्राप्त की, युद्ध किया। तो गणतंत्र का अर्थ यही है कि हम सबको साथ लेकर के और सबके साथ चल करके एक भाईचारे की भावना से सौहार्द स्थापित करके हम जहां कहीं भी रहें, जिस जगह भी रहें, चाहे वो हमारा घर परिवार हो, चाहे वो हमारा कार्यस्थल हो, कहीं पर भी हो, हम जिस समाज में रहें, हमें अपने इस गणतंत्र के अर्थ को समझते रहना होगा और इसका पालन अवश्य करना चाहिए। तो आज के इस महत्व को समझते हुए मेरी सभी छात्र छात्राओं और हमारे स्टाफ के सदस्यों से यही प्रार्थना है कि हम संविधान का सम्मान करें। राजनीतिक दल हमें जाति धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि वो राजनीति को आज इसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। लेकिन ये हमारा अपना नैतिक दायित्व है कि हम सुने सबकी, ये आवश्यक है, क्योंकि अगर हम सुनेंगे नहीं तो हम समझेंगे नहीं, और जब हम समझेंगे नहीं तो हम कर नहीं सकेंगे। इसलिए सुनना अवश्य चाहिए, सबकी सुनना चाहिए। जो जैसा भी जिस उद्देश्य से कह रहा है, पहले धैर्यपूर्वक हमें सुनना है, समझना है, और उसके बाद निर्णय करना है कि हमें किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी है। अक्सर गलती ये होती है कि हम सुन तो बड़ी जल्दी लेते हैं और बिना समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं। सबसे बड़ी गलती वही हो जाती है हमसे। सुनिए, समझिए, फिर कीजिए। हमारा गणतंत्र भी हमें यही कहता है कि हमें पहले अपने समाज के सभी वर्गों की भावनाओं को देखना, सुनना, समझना चाहिए और उन्हें उनका यथोचित सम्मान देना चाहिए। आज के समय में कोई भी छोटा या कोई भी बहुत बड़ा नहीं है। संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं। आवश्यकता यह है कि हम कब अपने मन में उनको वो अधिकार दे पाएंगे। संविधान में एक पुस्तक लिखी गई जिसमें सभी नियमों को लिखा गया, लेकिन क्या हम अपनी कार्यशैली में उन सिद्धांतों को अपना पाते हैं? आवश्यकता इसी बात की है, और इस पर्व की सार्थकता भी तभी होगी जब हम अपने मन में इस बात को धारण करें कि सभी को साथ लेकर के चलना है, सभी का सम्मान होना चाहिए, और हम सबको एक साथ आगे बढ़ने के लिए स्वयं भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ने का अवसर जरूर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वक्तव्य को मैं अपने समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय। धन्यवाद महोदय। आपके प्रेरणा पर उत्साहवर्धक जो विचार थे हम लोगों को प्रेरित करेगा। इसके साथ ही साथ अब अंत में हम अपने वरिष्ठ शिक्षक श्री अनूप बाछिल सर से निवेदन करेंगे कि वहाँ आए और अपने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। Ladies and gentlemen, a very good morning to all. First, I would like to wish you all a very happy Republic Day. We all are grateful to the Constitution that came into effect on this day. It's give me
an immense pleasure to deliver two vote of thanks for this event to all the dignitaries assembled here. I would like to thank our beloved principal in charge, staff members, participants, and last but not least, our beloved students for making the function as a grand success. Once again, I thanks one and all present here. Thank you. धन्यवाद सर, आपका हार्दिक जो वक्तव्य था हम लोगों के प्रति उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ हम कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे। रेंगने से अच्छा है चला जाए, रेंगने से अच्छा है चला जाए, चलने से अच्छा है दौड़ा जाए, दौड़ने से अच्छा है उड़ा जाए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद सभी।